तो चलिए कमेंट्री बॉक्स में अब तब्दीली हो रही है। मैं हूं अतुल वासन, मेरे साथ अजय मेहरा वापस है और ऐसा लगता है था कि ये मैच कांटे का होगा, पूरे 20 ओवर तक चलेगा, ऐसा लग नहीं रहा इस समय। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और बंगाल ने एक तरह ऐसे बल्लेबाजी करते वापसी की थी मैच में। यहाँ 2-3 विकेट लेके क्या वापसी कर पाएंगे ये देखना रहेगा। और इससे पहले वापसी हो सचिन जोशी जो कि रेड हॉट फॉर्म में लग रहे हैं। गेंदबाजी से भी 3 विकेट्स, बल्लेबाजी से भी रंग जमा रहे हैं अपना। थोड़े फिट नहीं लग रहा है, लगता है हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा खिंच गया है। तो हैमस्ट्रिंग अगर चला जाए तो बल्लेबाजी में भी दिक्कत आती है, आप बॉल तक पहुंच नहीं पाते। तो चलिए इससे पहले कि अगली गेंद हो, गेलन के पास चलते हैं कि वो अब किसके साथ बातचीत कर रही है। Well, standing right here with me is one of the most enthusiastic fans and supporters of the Telugu Warriors. We've been watching you with the flag waving all across every time they got a wicket or they hit a boundary, yeah, or a 6, absolutely. Ladies and gentlemen, Kainat Arora, how proud are you right now of the Telugu Warriors? Well, I'm very, very proud because, you know, I'm here all the way from Bombay to Hyderabad just to cheer Telugu Warriors, and I hope they win tonight. I'm very, very excited, and it's going pretty cool right now. It can't get better. Like all the sixers Sachin is giving right now, and we all are excited, waving the flag. So yeah, it's a happy moment. It's a happy moment. The Telugu Warriors are doing exceptionally well for themselves right now. The energy levels are so nice. Just look at the ambience. The people out here, they're so vibrant. So they're just cheering, and too much of hustle and bustle. Yeah, the home crowd has been more than overwhelming right here. If you had to place your money on any one player from the team, I know it's a difficult one, which player would you put your money on? Sachin for sure. Sachin for sure. Ironic, right? There's something about the Sachins and the crickets. Working together again, like, you know, so I have to go for Sachin, and I'm here for his team. So yeah, we are like kind of ambassadors right now. And I love Hyderabad. I love the energy levels here. And it's my first CCL in Hyderabad. And yesterday we just attended Mumbai and Veer Marathis. So even that was great. Look at that. One more 6, guys. One more 6. Another 4. Another 4. Yeah, we doing it. That was a 6. I hope we win tonight. Otherwise, they're going to kill us. They'll think we are unlucky for them. No, not at all, absolutely. Okay, now assuming that the Telugu Warriors are going to win today, we want to see you do a victory dance. All right? Are you ready? Victory dance? Yeah, any victory step. Come on. You going to do it with me? Absolutely. Like on what track? Let's do it. All right. And the winners are Telugu Warriors. Yeah! Hip hip, hooray! Hip hip hooray! Well, thank you so very much, Kainat. It's back to commentary. तो चलिए बढ़िया विजुअल्स ऑफ द फील्ड और बहुत बढ़िया विजुअल्स तेलुगु वॉरियर्स के लिए ऑन द फील्ड भी। जबरदस्त छक्का लगा है और इस समय सचिन जोशी से उम्मीद करते करते बाबू ने भी हाथ जड़ दिया अपने। जिसका मौका आ रहा है वही चेप रहा है यहाँ पे, छक्के पे छक्का। बिल्कुल अतुल, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मुकाबला तेलुगु वॉरियर्स की गिरफ्त में, और जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है खासकर सचिन जोशी ने, जिस प्रकार आगे से लीड किया है, आज गेंदबाजी उनकी बहुत बढ़िया रही, 3 विकेट लिए, अब बल्ले से कमाल कर रहे हैं, तो मुश्किलें बढ़ती हुई। 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 117 पे 1 तेलुगु वॉरियर्स। प्रिंस एकमात्र बल्लेबाज जो आउट हुआ तेलुगु वॉरियर्स के लिए। 7 रन बना के जरूर सोच विचार कर रहे होंगे कि एक बढ़िया अवसर उनने मिस कर दिया, पर उनके साथ ही सचिन जोशी अब 63 पे नबाद, बाबू अभी 33 पे, तरुण, रघु, रत्ना, सुशांत, काफी बल्लेबाजी शेष, और ये मुकाबला तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में नजर आता हुआ। 36 रन यहां से चाहिए 54 गेंदों में,
बहुत ही आसान लक्ष्य नजर आता है उनके लिए। गेंदबाजी में अब परिवर्तन, मोहन आए हैं बार्ली जी एंड से, दाहिने हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज। शुरुआत बढ़िया है मोहन द्वारा, और ये कहां पे देती देर, 11 ओवर बीत चुके हैं, बाकी गेंदबाज इतने महंगे साबित हुए और अब कप्तान जिशुन को लेके आए हैं। देखिए अब मुझे लगता है कि लास्ट रोल ऑफ द डाइस है, ऐसा कुछ बचा नहीं कि जो नई कोशिश की है। अब जो उनके मेन फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं वो भी आज अच्छे खासे आड़े हाथों लिया है सचिन ने उनको। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव और बिग ब्रदर फाउंडेशन जो है वो भी सचिन जोशी की है, जिसमें इतना बढ़िया उन्होंने योगदान देना, और इस समय तो बल्लेबाजी से योगदान जो दे रहे हैं बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि तेलुगु वॉरियर्स ने इस सीजन कुछ धमाल करने का मूड बना लिया। पिछले कुछ सीजन से वो फ्लैटर टू डिसीव वाली बात रही है कि ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हैं पर अंत में जाते जाते जीत नहीं पाते। तो इस बार चेन्नई को और बुलडोजर्स को कुछ कंपटीशन जरूर मिलने वाला है। यार खासकर अगर सलामी जोड़े की बात करें, क्योंकि सचिन जोशी अब ऊपर आ रहे हैं खेलने के लिए, तो एक दाएं हाथ की अब सलामी जोड़ी नजर आ रही है। यहाँ पे अब अच्छी शुरुआत मोहन द्वारा, नबीतुल्ली गेंदबाजी कर रहे हैं और कुछ बहुत ही टाइट ओवर डालने होंगे अगर वापस आना है, अन्यथा अगर दूसरे एंड से भी रन जाएंगे फिर मुश्किलें बढ़ेंगी बंगाल टाइगर्स के लिए। बिग ब्रदर फाउंडेशन जो कि सचिन जोशी की एक पहल है, हर रन के लिए 1000 रन डोनेट कर रही है इस संस्करण में। और इस बार एक बार फिर से इनफील्ड को क्लियर करते हुए बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट, 4 रन और मिलेंगे। बाबू भी ऐसा लग रहा है कि अब खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद देख लिया है जिस अंदाज से सचिन जोशी ने आज खेला है। और कहते हैं कि ये खरबूजा को देख के रंग बदलता है, और यहाँ पे बाबू जोशी को देख के रंग बदलते हुए। नहीं बढ़िया बल्लेबाजी है, क्योंकि बॉल के हिसाब से ही शॉट मार रहे हैं। पिछली गेंद में पावर नहीं थी, विकेट के बीचों बीच से रूम नहीं था, तो उसको सम्मान भी दिया। तो ऐसी बात नहीं कि जैसी गेंदबाजी उसको उड़ा रहे हैं। वॉचफुल इनिंग्स है और मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। एक ओवर जो अच्छा नजर आ रहा था महंगा साबित होता हुआ, भारी किनारा और एक बार फिर डाइव किया पर कोई लाभ नहीं, 4 रन और मिलते हुए। बड़ी जबरदस्त शॉट है, इंटेंडेड शॉट है। देखिए आप अगर स्लो मोशन देखेंगे आप तो एंड मोमेंट पे अपनी कलाइयां खोल दी उन्होंने, और एग्जैक्टली उनको पता था कि वो शॉट कहां खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। चल अतुल पहले ही भाप लिया था कि थर्ड मैन का फील्डर सर्कल के अंदर है, और जी हाँ जैसे कलाई मोड़ी आप गैप भेदा, 4 रन मिलते हुए। और ये देखिए प्रतिक्रिया, कितने खुश, और क्यों नहीं। भेजे के करीब पहुंचती हुई तेलुगु वॉरियर्स की टीम, 25 रन चाहिए अब यहां से। आखिरी गेंद अब इस ओवर की, घुमाने का प्रयास किया, चूके बीट हुए 128 पे। एक गेंद बची है अभी, बढ़िया स्लॉट में थी आखिरी गेंद, ये चूक गए। हल्का सा रूम बनाना चाहते थे, थोड़े से एक्साइटेड हो गए। अब बैक टू बैक बाउंड्रीज जो लगाई हैं, 11 रन इस ओवर में आ चुके हैं। हाथ से लग गई पर बिल्कुल सीधी शॉट, थोड़ा सा पेस कम कर दिया गेंदबाज ने। 13 रन फिर भी इस ओवर से आ गए, तो 12 ओवर के बाद 130 रन।
अभी तक ये मैच समरी रही है इस मुकाबले की, मैच नंबर 4 इस संस्करण का। बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया 152 रन 8 विकेट नुकसान पे, और जवाब में तेलुगु वॉरियर्स बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, 130 रन और मात्र एक ही विकेट गंवाया है। 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सैंडी नए ओवर को लाते हुए बढ़िया गेंद पर सम्मान देते हुए गैप में खेला एक बार फिर, काफी सूझबूझ के साथ। पहली विकेट 25 रन पे गिरी थी, तो 100 से ज्यादा की साझेदारी इस पेयर ने की, और दूसरी खिलाड़ी भी बाबू भी अपने 50 की तरफ अग्रसर हैं। ये तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट हो जाएगी जब आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन 2 खिलाड़ी T20 में 50s लगाएं, तो ये पता लगता है कि आपने किस तरह से खेल में दूसरी टीम के ऊपर डोमिनेशन की है। और अतुल, सबसे बड़ी बात है ये पहला मुकाबला है दोनों टीमों के लिए इस संस्करण में, और अगर ऐसी जीत आपको मिलती है, आपका जो मनोबल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो जरूर बढ़ जाता है। और ये खेल मोमेंटम का है, अगर उसी को बरकरार रखते हैं, ये टीम बहुत खतरनाक नजर आ रही है इस सीजन में, तेलुगु वॉरियर्स। और जो चिंता का थोड़ा सा विषय है उनके लिए कि सचिन जोशी जो उनके मेन खिलाड़ी नजर आते हैं, वो उनकी हैमस्ट्रिंग में कुछ दिक्कत है, तो पूरा हफ्ता उनके पास ट्रीटमेंट लेने का, रिकवरी के लिए बैक टू बैक मैचेस नहीं है यहाँ पे। आसानी से 2 रन ले लिया, अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंतजार में है बंगाल टाइगर्स। रिक्वायर्ड रेट देखिए तो 2.5 रन के करीब पर ओवर, और 9 विकेट हाथ में, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला ये। इस बार घुमा के खेलने का प्रयास किया, चूके सैंडी भी जानते हैं कि बहुत ही करीबी मामला। दोनों बैट्समैन वेल सेट है और ऐसे विकेट थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था और एक स्टंपिंग का मौका भी था, काफी आगे निकलाए थे बाबू। सैंडी हैज बीन एक्सीलेंट आई थिंक। ये देखिए आसानी से, ओह 1 बाउंस, और देखिए बस बिल्कुल स्लॉट में है। और ये मुझे लगता है कि बेहतर है कि आप ज्यादा जोर से मारने की कोशिश ना करें, बट टाइमिंग की कोशिश करें। पिछले शॉट में बहुत जोर से मारने चले गए थे, तो लाइन मिस कर गए। अब देखिए बैटिंग भी कितनी आसान नजर आ रही है इस पिच पे, तो ये मौसम का भी मुझे लगता है कि जलवा है। जब हल्की सी नमी आती है और थोड़ी सी ड्यू फैक्टर है, उसमें बॉल ग्रिप नहीं कर रहा। जी बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है विकेट थोड़ी बाइंड हो चुकी है, बाइट का इशारा एम्पायर का, और वो नमी आने से, जैसे आप कह रहे थे, ओस के प्रभाव से ऐसा लग रहा है बेहतरीन अब विकेट बन चुकी है बाबू 49 पे, मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। 16 एक्स्ट्रास अभी तक। फिर से वाइड, वैसे ही काफी महंगे साबित हुए हैं सैंडी इस ओवर में। ये तो आप जले पे नमक छिड़कने की तरह है। इसको धकेलते हुए ऑफ साइड पे 1 रन और मिलेगा। 50 रन पूरे किए बाबू ने, बहुत ही बेहतरीन पारी। शाबाशी देते हुए सारे ही समर्थक, सारे ही उनके टीममेट्स। 141 पे। तेरह ओवर की समाप्ति के बाद 141 रन, 1 विकेट नुकसान पर। उसका कारण है जिस अंदाज से जोशी और बाबू ने बैटिंग की है, बेहतरीन साझेदारी। फिर से ड्राइव किया, ऐसा लगा कुछ जूता जरूर लगा है, इसके कारण मात्र 1 ही रन मिलेगा बाबू को। स्ट्राइक पे आते हुए एक बार फिर सचिन जोशी, ऐसा लग रहा है जरूर थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। रनर भी अभी क्रीज पे है सचिन जोशी के लिए, प्रिंस के रूप में।
100 हार्ट्स इनिशिएटिव हृदय द्वारा एक बहुत ही बढ़िया ये पहल है। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास 22 के रूप में और रन मिलते हुए। मुश्किलें वैसे ही तमाम है बंगाल टाइगर्स के लिए, पर यहां पे और बढ़ती हुई। और अगर आप नजर डालें 21 एक्स्ट्रास, जिसमें 5 बाइज है, 5 लेग बाइज है। थोड़ी गेंद नीचे दूर रही और ऐसी गेंदों को पकड़ना बहुत जरूरी विकेट के पीछे। कप्तान जीशु काफी निराश। आज बेहतरीन साझेदारी हुई थी रॉय और जीशु के बीच में, पर ज्यादा उसका फर्क पड़ा नहीं। मुझे लगता है इसमें मैंने जो पॉइंट मेंशन किया था पिछले ओवर में, विकेट का बहुत बड़ा हाथ है। इस में इतनी खराब गेंदबाजी तो नहीं, पर बिल्कुल मदद नहीं मिली है कुछ भी गेंदबाजों को विकेट से। कोई ग्रिप, कोई टर्न, बाउंस, ऐसी मदद जो मिली थी तेलुगु बॉलर्स को, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा फैक्टर होगा। अब अगले आने वाले मैचेस में टीमें ये बात को जरूर ध्यान में रखेंगी। ये चेस करना यहाँ पे शाम को फायदेमंद है। यह चेन्नई राइनोज की, जैसे अतुल आपने बात की, 150 से नीचे का स्कोर डिफेंड किया, पर अब तो ऐसा लग रहा है गिव अप कर चुके हैं। शारीरिक भाषा इतनी बढ़िया नजर नहीं आ रही बंगाल टाइगर्स की टीम की। जीशु जरूर सोच विचार कर रहे होंगे कि अगले मुकाबले में किस रणनीति से उतरे, खासकर अगर गेंदबाजी की बात की जाए। इस बार उठा के खेला है, क्या ये विनिंग शॉट है? पर यहाँ पे विकेट मिलती हुई अंत में सचिन जोशी की एक बेहतरीन पारी समाप्त होती हुई। विनिंग शॉट लगाना चाहते थे, पर सीधा गेंद फील्डर के हाथ में जाती हुई। अभी भी यहां से 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, पर बहुत ही बेहतरीन पारी। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। आखिरकार कुछ तो सही हुआ। एक नोशनल विक्ट्री मैं मानता हूं इसे। सचिन को नॉट आउट जाना चाहिए था, वैसे मुझे लगता है इतनी बढ़िया पारी खेल के, पर खैर फिर भी टीम के लिए खेले। आराम से 2 रन ले सकते थे जीत के और नॉट आउट आ सकते थे, पर ऐसा स्टाइल नहीं। यहाँ पे बड़े एक इम्पैक्ट के साथ खत्म करना चाहते थे। या बिल्कुल आज उन्हीं का दिन रहा है। अगर आप गेंदबाजी की बात करें, सचिन जोशी ने 3 विकेट लिए, 67 रन बनाए, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और बहुत मुश्किल नहीं कि आज मैन द मैच कौन रहेगा। तेलुगु वॉरियर्स 150 और 2 विकेट नुकसान पे मात्र 3 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अकीनेनी अब आए हैं नए बैट्समैन, जिनकी औसत बहुत ही बढ़िया है, लगभग 50 की, और स्ट्राइक रेट बेहतरीन। और आते ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला ऑफ साइड पे। बाबू अब स्ट्राइक पे आते हुए, क्या विनिंग शॉट वही खेलेंगे? तो अच्छा किया, 2 रन ले सकते थे, उन्होंने स्ट्राइक दी है कप्तान को, अखिल को। कुछ गेंदबाजी में आज दम दिखा नहीं पाए, काफी महंगे साबित हुए। तो एक नोशनल जवाब का इंतजार है उनसे। सिंबॉलिक जेस्चर जिसे कहते हैं, कई बार विनिंग रन भी बहुत मायने रखता है, तो कई बार लोग मौका दिया जाता है लोगों को। फिलहाल 14 ओवर के बाद 151 रन, सिर्फ 2 रन चाहिए अब। मुकाबले का नतीजा बिल्कुल स्पष्ट नजर आता हुआ। तेलुगु वॉरियर्स को मात्र 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 36 गेंदों में। क्या ये आखिरी ओवर होगा? सैंडी अब आते हुए, स्ट्राइक पे बाबू, और लगभग यहां पे कॉटन बोल्ट। जी हां, विकेटें गिरती हुई। दोनों सेट बैट्समैन बाबू और सचिन जोशी वापस पवेलियन लौट चुके हैं। एक सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं।
पर अपना योगदान जरूर दिया आज बाबू ने, जिस अंदाज से बैटिंग की है, पुश करने का प्रयास किया था, बढ़िया लाइन और अच्छा कैच सैंडी द्वारा। तो अंत में एक विकेट मिलती हुई सैंडी को। आउट हुए बाबू 52 रन बना के 151 पे 3। तो एक सफलता मिलती हुई सैंडी को। नए बैट्समैन रघु और फिर से बढ़िया गेंद, थोड़ी टर्न भी होती हुई। अब ऐसा लग रहा है जब दो नए बैट्समैन है, इस विकेट में भी कुछ हरकत नजर आती हुई। बाबू जो पिछले बैट्समैन आउट हुए थे, थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल, पुश करने का प्रयास किया था, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे। साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने थोड़ी मूवमेंट होती हुई। और फिर से बढ़िया गेंद विद द आर्म, गेंद सीधी रहती हुई, कट करने का प्रयास किया, चूके वहां पे रघु। पर मैं बात कर रहा था बाबू की, जिस अंदाज से आउट हुए, देखिए बिल्कुल गेंद की पिच तक नहीं गए, हाफ हार्टेड शॉट, पुश करने का प्रयास किया और एक अच्छा कैच सैंडी द्वारा, गेंद डिप कर रही थी। बहुत तेज से यहाँ पे खाता खोला रघु ने, जैसे ही गेंद बल्ले पे लगी दौड़ लिए और मात्र 1 रन चाहिए, स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। याद रखिए मात्र 15वां ओवर है, तेलुगु वॉरियर्स बहुत ही बेहतरीन स्थिति में, जीत से मात्र 1 रन दूर। मौका है अखिल के पास विनिंग शॉट लगाने का, और लगाते हुए इसके साथ जीत मिली है तेलुगु वॉरियर्स को। एक बढ़िया मुकाबला खेला तेलुगु वॉरियर्स ने, 7 विकेट से ये मुकाबला जीता है। मैं तारीफ करनी होगी सचिन जोशी की, बाबू की, जिस अंदाज से ये इनिंग्स को आगे बढ़ाया। पर अगर बंगाल टाइगर्स की बात करें, बैटिंग अच्छी की थी, एक फाइटिंग स्कोर उनके पास था, 152 रन बनाए थे बंगाल टाइगर्स ने 8 विकेट नुकसान पे। पर क्योंकि बीच में साझेदारी इतनी बढ़िया हुई सचिन जोशी और बाबू के बीच में, एक तरफा ये मुकाबला उन्होंने कर दिया। तेलुगु वॉरियर्स अंत में 7 विकेट से मुकाबला जीती हुई। याद रखिए दोनों टीमों के लिए, बंगाल टाइगर्स और तेलुगु वॉरियर्स के लिए, ये पहला मुकाबला है इस संस्करण का। तेलुगु वॉरियर्स को जिस प्रकार की जीत मिली है, निश्चित तौर पे उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो मनोबल है, 7वें आसमान पे होगा। एक बड़े अंतर से मुकाबला जीता है। अभी भी 5 ओवर 1 गेंद शेष थी और 7 विकेट भी शेष थे तेलुगु वॉरियर्स के पास। कप्तान सचिन जोशी निश्चित तौर पे बहुत खुश होंगे अपनी पूरी टीम के परफॉर्मेंस से, और खासकर शायद अपनी परफॉर्मेंस से। 3 विकेट लिए सचिन जोशी ने और शतक भी लगाया। और बेहतरीन स्पिरिट में मुकाबला खेला गया। थोड़े लंगड़ा के चल रहे हैं, हैमस्ट्रिंग में उनकी खिंचाव जरूर आया है मांसपेशी में, पर उसके बावजूद भी बल्लेबाजी करते रहे और अंत में आउट हुए थे 14वें ओवर में सचिन जोशी। बहुत ही बेहतरीन आज बैटिंग दिखाई है तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने। प्रिंस जल्दी आउट हो गए थे 7 रन बना के, पर उसके बाद जोशी और बाबू, वो जो साझेदारी थी बहुत ही बेहतरीन, जिसने मुकाबला एक तरफा कर दिया। 67 रन बनाए जोशी ने, बाबू ने 52 रन की पारी खेली और पहला विकेट जब गिरा था 25 के स्कोर पे, ऐसा लग रहा था इस मुकाबले में काफी रुचि है, पर उस साझेदारी के कारण बिल्कुल मुकाबला एक तरफा हो गया।
अखिलेश और रघुवंश में नाबाद रहे और 153 रन बनाए तेलुगु वॉरियर्स ने 3 विकेट नुकसान पे। गेंदबाजी की बात करें जरूर उसमें काफी गुंजाइश है सुधार की। इंद्रशीष सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। इकॉनमी उनकी देखें तो 20 की। मैंटी ने भी 1 ओवर डाला, 15 रन पर सफलता मिली राजा को जिन्होंने 1 विकेट लिया 29 रन देके। 1 विकेट मिली सैंडी को 25 रन देके और मोहन को 1 विकेट 15 रन देके अपने 2 ओवर में। तो मैच नंबर 4 इस संस्करण में कहानी ये रही, बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, 152 रन बनाए 8 विकेट नुकसान पे 20 ओवर पे और तेलुगु वॉरियर्स ने जवाब ने बेहतरीन रन चेज दिखाया। 14.5 ओवर में 153 रन बनाए 3 विकेट नुकसान पे और तेलुगु वॉरियर्स ने मुकाबले